Okay, class. Should we start now? Should we start now? Hello. Should we start now? शुरू करें? चलो भाई. मार्कर देखो गिर गया यहाँ. पैर जरा पीछे करें. अब बताओ कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हो पाया था? ओके. तो वी हैव टू गो फॉर मैथमेटिकल. वी हैव टू गो फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, है ना? अब हमें क्या सीखना है? अब हमें वेक्टर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं. अब हमें क्या करने हैं? वेक्टर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, राइट? देखो, अच्छा, क्या हम लोग अलजेब्रा के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जानते हैं? डू यू नो द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द इन अलजेब्रा? क्या क्या होते हैं? दे आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division, right? So there are four mathematical operations in algebra. Similarly, in the vector algebra we have similarly in the vector algebra we have vector vector addition, then vector addition, then vector subtraction, then vector multiplication, then vector multiplication, but there is no concept of last bench, but there is no concept of vector division here. So in case of normal algebra, we have four basic mathematical operations. They are addition, subtraction, multiplication as well as division. But in case of vector algebra, we have only vector addition, vector subtraction, vector multiplication. Vector division is not possible here. Apart from these three mathematical operations, right, I will try to include one more, that is called as scalar multiple, that is called as scalar multiple, that is called as the scalar multiple, or multiplying the vector with a some constant number, right? So we will go for four mathematical operations. What are those? Scalar multiple, vector addition, vector subtraction, and vector multiplication. Isn't? So have you made these things also? Have you written these things also? Right. Okay. Scalar multiple. First one is scalar multiple, right? Great. Now, let this one is a vector A. Let this one is any vector A. So this vector will have some magnitude and some direction. This vector will have a magnitude as well as direction. Let this vector is a vector A, and we know that this vector have any magnitude as well as direction. This is the vector A. Now, if you have to write another vector, that is 2A. If you have to write another vector, that is 2A, or if you are multiplying the vector A
with a number 2, then what would it be, then what will happen? आपके पास कोई वेक्टर ए है और अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी चेंज्ड। जितना वेक्टर पहले था, जो वेक्टर पहले था, डायरेक्शन उसका वही मेंटेन रहेगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लेंथ है, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका जो नया वाला वेक्टर बनेगा वो ओरिजिनल वेक्टर का या इनिशियल वेक्टर का इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स। Isn't? If I say 1 by 2a, then what does it mean? If I say 1 by 2a, then what does it mean? The magnitude of the vector a is going to be reduced by half, but still direction will not be changed, right? So what will happen here? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो वेक्टर है जिसका लेंथ इतना बड़ा था वो क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी जस्ट हाफ। वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट हाफ, दिस ओनली, just half, isn't? So that is going to be just half. Now, so here what you have done, here you have multiplied the vector a with some positive constant number 2, 1 by 2 and all, isn't? Now rather than 2a, if you have multiplied with if you have multiplied the a with -2, that is -2a, then what will happen? Exactly. अगर आपने इस a को 2 से ना मल्टीप्लाई करके -2 से मल्टीप्लाई किया होता, तब क्या होता? Then both will change, magnitude as well as direction. अब ये क्या हो जाता? अब इस केस में ये आपका जो वेक्टर a है, ये इसकी दोनों चीजें बदल जाती, इसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाता और इसका डायरेक्शन भी बदल जाता। इट्स अ -2a। if it is 1 minus 1 by 2a, that what does it mean? जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जस्ट हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीन्स व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? if a vector will be multiplied with positive number, then positive constant or positive number, then its direction will not be changed but magnitude would be changed. But if a vector is multiplied with negative number or negative constant, then its magnitude will be changed and its direction would be reversed, है ना? अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस वेक्टर के दिशा में, उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बदल जाएगा। लेकिन अगर उसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है या नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और साथ ही साथ उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट या रिवर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो पक्का? तो आप नोट कर लो, यहाँ पे बना लो। So do you want to write this statement also? इसका स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हो? इसका स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हो? पक्का? तो आप पहले फिगर बना लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? स्टेटमेंट पहले लिखवा दें? लिखो। If any vector is multiplied with any positive number, if any vector
if any vector is multiplied with any positive number, with any positive number, with any positive number, comma, the magnitude will be changed, the magnitude will be changed, the magnitude will be changed, but direction, direction still remains same, but direction still remains same, but direction still remains same. Clear? Next, if it is multiplied with any negative number, 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 its magnitude will be changed, its magnitude will be changed, and its direction, and its direction will be reversed, 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 right? So here there are positive numbers, are positive constants. यहाँ मैंने क्या आपको बताया, पॉजिटिव कांस्टेंट बताया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है. The vector A is the original reference vector, you can say. तो वेक्टर ए क्या है, यही हमारा ओरिजिनल वेक्टर था. ठीक है, वेक्टर ए वाज द ओरिजिनल वेक्टर. 2a 2 टाइम्स बड़ा हो गया, हाफ ए जस्ट हाफ हो गया, -2a 2 टाइम्स बड़ा तो हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और -1/2a मैग्नीट्यूड छोटा हुआ और डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया. ठीक है, may I proceed further? राइट, दिक्कत हो रही है इसको ऑफ से. नेक्स्ट आगे बढ़े. Great. Now the next mathematical operations on the vector is vector addition. Next one is the vector addition, right? Next one is the vector addition. Okay, please. Vector addition. Just look at here. Scalar addition says that if you have two numbers, if you have two numbers 3 and 4, suppose let you have two numbers 3 and 4, then if scalar addition says that 3 plus 4 is equal to 7, but if 3 is vector and 4 is vector, then you can't say that 3 plus 4 would be the 7. अगर 3 और 4 दो स्केलर नंबर हैं और इनका ये दोनों नंबर हैं और दोनों का स्केलर एडिशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 3 plus 4 का वैल्यू क्या होगा, 7 के बराबर होगा. पर अगर 3 और 4 किसी वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं या उनके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं,
उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो आप 3 + 4 को 7 नहीं बोल पाओगे। सर कैसे? आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, 9th स्टैंडर्ड में आप याद करो, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज पढ़ी होगी। क्यों? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, राइट? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो तुमने इसको लिख लिया नॉर्थ और मान लो तुमने लिख लिया ईस्ट। अब एक बंदा यहां से देखो, एक बंदा यहां से चलना शुरू किया, he has started his journey from the origin। पहले वो 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो 3 मीटर ईस्ट में चला, तो 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? तो आप लिख सकते हो 3 ई कैप। व्हाई आई हैव रिटन द ई कैप? ई कैप किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अब वहां से देखो, फिर यहां पर इसने एक वेक्टर ट्रेस किया, अब ये ऊपर चला गया, कितना? 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इसका मतलब 4n कैप वी कैन राइट, 4n कैप। Now if finally I will ask you that what distance he has covered, मान लो पॉइंट A है, पॉइंट B है, what distance he has covered while moving from A to B, then what would be your answer? मैंने अगर पूछा कि अगर O से लेकर के B तक जाने में उसने पूरी कितनी दूरी तय की, तो आप क्या बोलोगे? It's only 3 + 4। But if I will ask you that what is the displacement, what would be the displacement, then displacement means the direct distance। मतलब आप इसको यहां से सीधे मिला दो, और अगर आप इसको सीधे मिला दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? what does it mean? You have to find out the hypotenuse of this right angle triangle, और ये कितना आ जाएगा? क्या ये 5 आ जाएगा? You will say the 5। तो फिर आप यहां नहीं बोल सकते हो ना कि 3 + 4 7 हो गया, तो आपका 3 + 4 क्या हो गया? 5 हो गया। सर ऐसे कैसे हो गया भाई? 3 + 4 5 कैसे हो गया? ठीक है, ग्रेट। देखो, मान लो पहले 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, प्लीज 3 मीटर पहले ईस्ट डायरेक्शन में ये चला। अब ये 3 मीटर ईस्ट चलने के बाद वो डायरेक्टली 90 डिग्री का टर्न नहीं ले रहा है। पहले कितना लिया था इसने? 90 डिग्री का टर्न लिया था और ये नॉर्थ में चला गया था। तो अब की बार ये क्या ये नॉर्थ तो गया, अब की बार ये ईस्ट तो गया, कितना गया? 3 मीटर, पर वो 90 डिग्री का टर्न ना लेकर के थोड़ा कम टर्न इसने लिया। मान लो ये टेकन अ टर्न ऑफ ओनली 60 डिग्री, उसने मात्र 60 डिग्री का टर्न लिया और फिर वो 4 मीटर चला। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? डिस्टेंस कितना होगा? अभी उसने 90 डिग्री का टर्न नहीं लिया, अभी उसने हेज टेकन ओनली 60 डिग्री टर्न, वो खाली 60 डिग्री मुड़ गया और फिर वो 4 मीटर चला। अब बताओ डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया? डिस्टेंस उसका कितना ट्रेवल हुआ? डिस्टेंस के बारे में तो बता दो। तो देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस ना, अरे बोलो तो, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ना? अभी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सो टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां एक लाइन में लानी पड़ेगी, और इस लाइन का जो लेंथ होगा वो इसी को आप क्या बोलोगे? उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे फॉर द सेकेंड केस। पर प्रॉब्लम ये है कि यहां तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना होता जैसा पहले केस में बना था, तो बड़े आसानी से हम क्या करते? हाइपोटेनस निकाल देते, ये बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता। पर इस केस में तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं तो फिर हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को निकालें? फिर हम कैसे इन दोनों वेक्टर्स को, इस कैसे 3e कैप को और ये जो 4 मीटर है इसका, जो कि 4 मीटर है यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हम उनको कैसे ऐड करें? तो देयर वुड बी सम प्रोसीजर ना, इसका भी तो अपना कुछ तरीका होगा। तो इसी को हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे? वेक्टर एडिशन। if two vectors are having an angle of 90 degree, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है,
तो उस वेक्टर को ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज दे विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस निकालोगे कट से आपका दोनों का एडिशन आ जाएगा। बट अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ अलग होता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कोई ना कोई तो मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सको, दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर सको। पक्का? ग्रेट। नाउ वेक्टर एडिशन को जानने के पहले अब आपको इतना बात तो पता चल गया कि वेक्टर एडिशन में एंगल का इफेक्ट आता है। स्केलर एडिशन में एंगल का इफेक्ट नहीं आता, उसमें कोई एंगल के बारे में बात नहीं होती। पर वेक्टर एडिशन में एंगल के बारे में बात होती है, और एंगल का मतलब डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर एडिशन में आपको एंगल के बारे में जानना पड़ेगा कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। जब तक आप एंगल जानोगे नहीं दो वेक्टर्स के बीच का कि ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, तब तक आप उसका वेक्टर एडिशन नहीं कर पाओगे। तो बिफोर गोइंग फॉर दिस टॉपिक वेक्टर एडिशन, we must have very clear cut concept of the angle between the vectors, right? So you can make the heading angle between vectors, angle between vectors, right? Angle between vectors. I have to take the attendance. Angle between vectors. Okay, last. Angle between vectors. Okay, great. So let you have two vectors ना, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, this one is a vector A, this one is a vector A, and that is horizontal, means along the x-axis, and there is another vector that is making some angle with this horizontal, and that angle is theta. आपके पास देखो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, वो किधर है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस, you can take this as an x axis ना, this is x axis and this one is a y axis, क्यों? So vector A क्या है, vector A is along the x axis, that is horizontal, and vector B is making some angle theta with horizontal. Now I have to find out the angle between A and B. What I have to do, we have to find out the angle between A and B. So for this purpose, how we can basically proceed? So as we know that every vector have two ends, head and tail, head as well as tail, right? तो यहां पे देखो वेक्टर ए के पास क्या दोनों एंड्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज T1 and this is called as H1, tail of the one, head of the one. This is called as T2, this is called as H2. Now try to connect these two vectors. अब इन दोनों वेक्टर को आप एक पॉइंट पर कनेक्ट करिए, आप इन वेक्टर्स को एक पॉइंट पर कनेक्ट करिए। देन हाउ यू कैन कनेक्ट, कनेक्ट करने का पहला तरीका क्या है, try to connect the opposite end or try to join the opposite end. पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करिए। So this is the first way of joining these vectors, है ना। पहले क्या करना है आपको, पहले वेक्टर से के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। तो आप जरा इसको ज्वाइन करिए, देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, पहले वेक्टर के हेड से, राइट। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं भाई, यहां पर हम
पहले वेक्टर के हेड से, ठीक है, पहले वेक्टर के हेड से दिस इज पहले वेक्टर के हेड से, ये पहला वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का क्या करने वाले हैं, दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपका दूसरे वेक्टर का टेल आपका जुड़ गया, ठीक है ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज हियर। अब देखो, अब यहां पर अगर आपने ऐसा किया तो आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो, आप हल्का सा एक्सटेंड करो, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ऐसे केस में ये जो दो एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये बाहर का एंगल थीटा और एक अंदर का एंगल, एक अंदर का एंगल दिखाई दे रहा होगा क्या, 180 माइनस थीटा, दो एंगल दिखाई दे रहा है, एक बाहर का एंगल थीटा और एक अंदर का एंगल 180 माइनस थीटा। थीटा, थीटा उसका एक्सटीरियर एंगल है, थीटा क्या है, थीटा इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसका इंटीरियर एंगल है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ऐसे केस में जबकि हम वेक्टर्स के अपोजिट एंड को ज्वाइन किए हों, मतलब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन किए हों, तो ऐसे केसेस में हम लोग एक्सटीरियर एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर लेते हैं। When the vectors are joined from head to tail, our opposite ends are to join, then exterior angle between the vectors are considered as angle between the vectors। तो उनके बीच का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं। आर यू गेटिंग सो, पक्का, तो नोट कर लो यहां पे, फर्स्ट नोट करो, फर्स्ट just make this diagram, make this diagram, स्टेटमेंट भी लिखवा दें, स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, ठीक है। when vectors are when vectors are joined, when vectors are joined head to tail, when vectors are joined head to tail, comma exterior angle between vectors, exterior angle between vectors are exterior angle between vectors is considered as angle between vectors, is considered as angle between vectors, exterior angle is considered as angle between vectors, exterior angle is considered as angle between vectors। पक्का, इतनी बात क्लियर है। पर आप एक बात ध्यान दो, देखो
देखो वेक्टर को ऐड करने का, देखो वेक्टर को ज्वाइन करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, वेक्टर को ज्वाइन करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर रहे हो, आप दोनों के कॉमन एंड्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉमन एंड का मतलब पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर सकते हो। मींस ये जो है, ये जो आपका लाइन है, ठीक है, चल लग रहा है इरेज नहीं होने वाला है। चल देखो यहां पे क्या कर सकते हो आप पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो? देखो यहां देखो, ये है आपका पहला वेक्टर। देखो ये है आपका पहला वेक्टर, क्यों? यह है आपका पहला वेक्टर ए, और यह है वेक्टर का टेल और यह है वेक्टर का हेड T1 H1। फिर यह है आपका दूसरा वेक्टर। आप इस वेक्टर को यहीं पे आपने ज्वाइन किया था ना, ऐसा मत करो, आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर लो। ऐसे जैसे वेक्टर ऐसे है ना, आप वेक्टर को ऐसे सीधा ऐसे उठा करके लेके जाओ, ऐसे यहीं पे जाके बिठा दो। वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी चेंज ना करते हुए, ये एंगल थीटा है ना, इसी एंगल थीटा को ऐसा मत करो कि थीटा 30 डिग्री है तो ऐसे चेंज करके 40 कर लें। इसी थीटा पर आप ले जा करके यहां पर इसके टेल से ज्वाइन कर लो। तो पहली बात ये, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकते हैं भाई। किसी भी वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन पॉसिबल है। आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मींस अगर कोई बेटा वेक्टर ऐसे सीधा ऐसे है ना, मतलब यहां पे जैसे लगे कैनन फायरिंग कर रहा है यहां पे 45 डिग्री के एंगल पे, तो आप इसको ऐसे सीधा लेकर के आगे भी चले जाओगे तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपको इसका एंगल नहीं बदलना है। सो यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। आप किसी वेक्टर को उसके पैरेलल क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। और आपने ऐसा किया, इसको शिफ्ट करके यहां पे बिठा दिया भाई, यहां पर आप लेकर के चले आए। और अगर आप यहां पे लेकर के चले आए तो आप देखो अब आपका क्या है, अब ये आपका वेक्टर बी बन गया। ये क्या है? ये आपका वेक्टर बी है। ये क्या है? ये आपका, यह हो गया अभी आपका वेक्टर बी। ठीक है, यहां पर देखो ये है आपका वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी। ये देखो ये है आपका T1, ये है H1 और ये क्या है? T2 और ये क्या है? S2। बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल क्या होगा? थीटा। और क्या यही थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा? नाउ दिस थीटा इज इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये थीटा क्या है? ये थीटा आपका इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? इसका इंटीरियर एंगल है। सो दिस इज द सेकंड केस। देखो यहां पर सेकंड, हाँ क्या करना, चला लो, फिर वही होगा कि वो ये उसका वीडियो हो रहा है, हिलता रहता है वो लगातार। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नो इस चलाओ, चलो परेशान रहोगे उससे बेहतर है इसको भी चला कहाँ पे ना ले आ जाता है। नहीं यही तरीका है लेने का एंगल। हाँ चलो हो गया। अटेंडेंस अभी है,
तुरंत चाहिए अटेंडेंस? 11th कॉमर्स का है, बगल वाला क्लास। हाँ, मैथ का है। मैथ वाले यही, यहाँ मैथ वाले दोनों एक साथ बैठे हैं। नहीं, क्या हुआ? कौन सा अटेंडेंस का जरूरत है? अभी हो जाने दीजिए। हाँ, यार अभी चाहिए तो ले लें। हाँ, बोलिए कि भी हुआ नहीं, अभी हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो भाई। सेकेंड केस हुआ, तो सेकेंड आप नोट करो। सेकेंड, हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, तो लिखो इफ, लिखो यहां पर इफ वेक्टर्स, लिखो यहां पर इफ वेक्टर्स आर कनेक्टेड, if vectors are connected by tail to tail, if vectors are connected by tail to tail, if vectors are connected by tail to tail, comma, interior angle is considered as angle between them. If vectors are, if vectors are, if vectors are, क्या लिखा आपने? If vectors are connected by tail to tail, comma, interior angle is considered as angle between, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, पक्का? नाउ इट्स क्लियर, ग्रेट। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, राइट? हो गया, ये फिगर बन गया था। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली? देखो, we have basically two vectors. This one is a vector a, this one is a, this one is a vector a, right? And this one is a vector b. Now we have two vectors, vector a and vector b. So this one is a vector a and this one is a vector b, and this angle is theta. Now just look at this diagram, that how they are connected. T1, H1, T2, H2. Then how they are connected? Head to tail, or head to head. So they are connected head to head, right? If they are connected by head to head, then once again this angle, interior angle, this angle is considered as angle between the vectors. Then try to make this diagram, ठीक है? If the vectors are connected by head to head, then this angle, the angle between the head, is considered as angle between the vectors. So if vectors are connected head to head, the angle between the heads are considered as angle between vectors.
राइट? इज इट क्लियर? इतनी बात आपको पता चल गई? पक्का? ग्रेट. I go for the next page now. Then finally, just look at the diagram. This one is a vector A and this one is a vector B, right? This angle is 120 degree. Then what is the angle between vector A and B? What is the angle between A and B? How much angle is there? यह वेक्टर A है और यह वेक्टर B है. This angle is 120 degree. Then what is the angle between A and B? Answer is it's a 120 degree. No. How they are connected? They are connected by head to tail. और इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक्सटीरियर एंगल को काउंट करते हैं. मतलब ये वाला एंगल नहीं लेंगे. और एक्सटीरियर एंगल लेने का तरीका क्या है? आप इस वाले साइड को एक्सटेंड करोगे. ये वाला साइड जैसे एक्सटेंड करोगे, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा. और इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 20 डिग्री एंड दैट इज 60 डिग्री. यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा भाई. बोलो, आ जाएगा? नाउ द नेक्स्ट वन. ठीक है, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी and this angle is 240. This angle is 240 degree. Then what is the angle between vectors? 240. पक्का? This angle is 240. 120? 20? Okay. So we have a various options, 20 degree, 120 degree, okay, 60 degree. Any other answer? So how they are joined? They are joined by tail to tail or head to head? Or head to tail? Head to tail? अरे बोलो तो. It's a T1, it's a H1 ना, and it's a T2, it's a H2. In this case, we have to go for the exterior angle. Then how we can find out the exterior angle? इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? This angle is 180 degree. इतना एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री. अब देखो ये पूरा एंगल कितना था? 240 था. तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. अब आप किसको एंगल बोलोगे? आप दोनों के बीच का एंगल क्या बोलोगे? कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. एक बात और याद कर लो, the angle between vectors cannot exceed the value 180 डिग्री. 102 वेक्टर के बीच में 180 से ज्यादा का एंगल नहीं हो सकता है. तो लिख लो यहां पे. आप इसको नोट करने के बाद आप इस डायग्राम को बनाओ. ठीक है? देख लो. The angle between हो गया. ये बात समझ आया कि 60 डिग्री कैसे आया है? आप 240 को नहीं ले सकते और 120 को क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ये कैसे ज्वाइन किया गया है? हाउ दे आर ज्वाइन? हेड टू टेल ज्वाइन किया हो गया है. तो आप इंटीरियर को ले नहीं सकते हो. एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो उस वाली लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, जितना एंगल बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा?
वही आपका एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखो, लिख लो, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ग्रेट। नाउ दिस वन, now this one is a vector A and this one is a vector B. Now this angle is let this angle is 18270 na, this angle is 300 degree. Then what is the angle between the vectors? What is the angle between vectors? Bolo. Then how they are joined? Tail to tail. It's a T1, it's a T2. तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग इंटीरियर एंगल को लेंगे, और इस केस में इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इस केस में इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नेक्स्ट, this one is a vector A and this one is a vector B. This angle is 70 degree. What is the angle between vector? What is the angle between vector? 70 degree. Right? So I hope now you have a clear cut concept of angle between the vector. Now from next class I will start with addition of the vector. Right? Thank you class.